Students, good morning. Internet students, good morning. So, students, welcome on the fourth day of this workshop, Advanced Excel workshop. Friends, today we are going to continue the previous topic. Yesterday, we have discussed the pivot table in detail. Okay, so I'm going to add two, three new information for you in pivot table. Then we'll start a new topic today, right? So I'm sure this workshop is beneficial for you, and you guys are learning new things every day. Okay. So friends, if you remember, yesterday we were talking about pivot, right? And I've demonstrated that how can you utilize pivot for analyzing a large data set, right? Students, yesterday I've informed you that if you are going to create your pivot, then you must convert your data set into table first of all. And the second step was you should not, first of all, check your file. There should not be any merged cell or empty cell. Okay. वहां पर कुछ भी merge नहीं होना चाहिए, right? Not even a single row, not even a single column, right? This is the condition before applying the pivot. Okay. तो चलिए हम आगे सीखते हैं आज कि अगर हम टेबल में कन्वर्ट करते हैं डेटा को तो उससे क्या बेनिफिट होता है. Okay, so students, look here on your screen. There is a data set in front of you, and let me introduce this data set. This data set belongs to credit card transactions. This data set is of credit card transactions. Here we have a date of transaction ID is there, a department name in which the credit card was used. Then there's a payment type, or you can say card type, Visa, MasterCard, MaestroCard. Okay, so different types of cards are there in this particular column D. Then there's a column for the details of issuer. Okay, so this is the name of issuer of this particular credit card. And in the last column, there's a numerical figure that is of transaction amount. Okay, so the last column belongs to transaction amount. Now, students, first of all, convert this data into table. So I'm going to select my data. I'm sure you have remember that to select the data, the command is Control Shift right arrow, Control Shift down arrow. Okay, and just press Control plus T. Control plus T is for converting your data into table, right? So right now I have already converted my data because I'm getting the drop down arrows on the top of this particular sheet. Okay, so it means that my data is already into table format, right? So friends, let's try to create a pivot table of this. Okay, first of all, let me tell you one more thing. If you want to give a name to this table, अगर आप इस table को एक नया नाम देना चाहते हैं, so that is also possible, right? ये भी possible है यहाँ पर. How? Just click on any part of this table, in any cell of this table. कहीं पर भी click कीजिए. Click on data tab. Just a second. Just a second. Yes, sorry. Now, not the data tab. Click on formulas tab. In the formula tab, there's a facility for you, and it is called name. Define name for your cell or for your sheet. So there's a define name manager. If you want to change the name, if you want to delete the name of any table, of any cell, so you can do the setting from here, from this particular box. So right now I'm going to click on define name. In define name, when I'm clicking on define name, automatically I'm getting a name Visa here, right? Somebody has given name Visa, right? So let's change it. So I'm giving a name data set for IPS. Data set for IPS. So this will be the name of this particular sheet, right? So I'm going to define name of this particular sheet here, right?
So this says that this syntax is not possible because we have used space, right? So let me use underscore and give a short name, data underscore IPS, and please click OK. So after this, you will be getting name of this table as data uh, underscore IPS. So let's create a pivot table. Click on insert, and now you need not to select your data. I repeat, now you need not to select the data for creating pivot. अब आपको कुछ भी select करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना cursor कहीं पर भी छोड़ दीजिए इस Excel में, right? Drop your cursor in any cell of this particular table and click on pivot, right? So automatically you are getting a name here. Okay, by mistake I have given already a name ABC, so it is taking that previous name ABC, right? Right now I have defined a new name, but it is taking the previous name ABC, right? I need to delete the previous name, then only I can give a new name to this. Otherwise ये पहले वाला name ही लेता है. तो इसने यहाँ पे मुझे दिखा दिया कि आपका डेटा सेट है ABC, और आप देख रहे हैं a dotted dancing line is there across the data set, right? At in border of this data set a dancing line is there automatically. तो उसने अपने आप select कर लिया. आपने सिर्फ अपना अपना कर्सर छोड़ा था एक. I repeat, मैं फिर से दिखाता हूँ आपको. Look here, I have not selected the data. I have just clicked on this man. इस सेल पे मेरा कर्सर है, और जब मैं पाइवोट पे क्लिक करता हूँ ऑटोमेटिकली ये पूरा डेटा सेलेक्ट कर रहा है. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ कन्वर्टिंग अ डेटा सेट इनटू टेबल. अगर आप उसे टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं तो काफी सारी चीजें आसान हो जाती है. ओके, नाउ लेट्स क्रिएट पाइवोट इन द सेम शीट. डू यू रिमेम्बर कल हमने सीखा था पाइवोट क्रिएट करना इन द डिफरेंट शीट इन अ न्यू शीट. टुडे I am going to show you how can you create pivot table in the same sheet. So click on this existing sheet and now define a location here. Suppose I want table here in this cell, in this empty cell. तो मैंने यहाँ पे बोला I3 सेल में टेबल बनाइए. प्रेस ओके. आर यू ऑब्जर्विंग समथिंग? कुछ देख रहे हैं आप यहाँ पे स्टूडेंट्स? नाउ आई एम गेटिंग pivot table function in the same table जिसमें मेरा डाटा है, उसी में पाइवोट टेबल क्रिएट करने का ऑप्शन भी आ रहा है. और वेरिएबल supplement name in the rows. So look here, all the names are available: appliances, food, furniture, hardware, and all these names are arranged according to alphabet. In alphabetic order, these names has been arranged here automatically. This select students table amount of transaction in a particular department. Sales was done in the ladies department. In the ladies department, they've used the highest number of amount, highest number of transactions. ये यहाँ पे हुए हैं. Amounts सबसे ज़्यादा इसी का है. Okay. If you want to check number of transaction, so drop this column once again. Amount in the same box, and right click in the second column, value field setting, and select count from here. आपको याद है कल हमने ये किया था. Select count from here and press OK. So look here. Now you are getting detail for number of transactions. So the highest number of transaction it is in ladies department, 43. Okay, and the highest number of amount of transaction is also in ladies department. Sum of the amount is 3928. Okay. So students, let me tell you one new topic. Just a minute, I am getting a query. Define name के बाद समझा दो. Okay. Okay, so let me repeat once again. One of the student is demanding for creating a table once again. So just a moment. So I'm going to delete the table first of all. Yes. So look here, students. If you want to create a table, a pivot table from a data set, so first of all, convert your how you will convert
select your data and click on insert, and there is a table command. Right now my data set is already into table, so need not to convert this data set into table. ये ऑलरेडी किया हुआ है मैंने. आपको करना है तो सिर्फ यहाँ इसको सेलेक्ट कीजिए और टेबल पर क्लिक कर दीजिए, और यू कैन यूज अ शॉर्टकट कंट्रोल प्लस टी, right? Control plus T. This is the shortcut for converting a data into table. Now click on any cell of this table, click on insert, and there is a pivot table command. So click on pivot table. Here in pivot table, automatically you are getting a cell range, data range. इसने आपको दिखा दिया है किस टेबल पे पाइवोट बनाना है. ABC. ABC is the name of this table, right? तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक्सेल ने सेलेक्ट कर लिया है माय डेटा विच इज इनटू दिस टेबल, राइट? इसके बाद फ्रेंड्स यू नीड टू स्पेसिफाई द लोकेशन जहां पर आप पाइवोट टेबल क्रिएट करना चाह रहे हैं. सो आई वांट टू क्रिएट पाइवोट टेबल इन द एग्जिस्टिंग वर्कशीट, इन द सेम शीट. सो आई हैव सिलेक्टेड एग्जिस्टिंग वर्कशीट. उसके बाद मुझे लोकेशन बताना पड़ेगा कहां पर चाहिए. सो लेट्स क्लिक हियर. इन एनी एम्प्टी सेल यू कैन क्लिक. तो ये बता दिया मैंने कि आप I3 सेल के अंदर टेबल बनाइए, एंड नाउ प्रेस ओके. तो जैसे ही हम ओके प्रेस करेंगे, आप देखिए यहाँ पर पाइवोट टेबल क्रिएट करने का ऑप्शन मेरे सामने आ रहा है इन द सेम शीट. माय डेटा इज आल्सो इन सेम शीट एंड माय पाइवोट टेबल इज आल्सो इन सेम शीट. नाउ क्रिएट अ सेलेक्ट अ वेरिएबल. एक वेरिएबल सेलेक्ट कीजिए जैसे कि डिपार्टमेंट नेम. तो उसका ड्रॉप योर डिपार्टमेंट नेम इनटू रोज. जैसे ही आप डिपार्टमेंट नेम को रोज में ड्रॉप करेंगे, you will be getting a list here. यहाँ पर अपने आप उसका लिस्ट आ जाएगा which is already arranged into alphabetic order. Appliances, food, furniture, hardware, all the names of departments. It is written here. एक और चीज आप देखिए, यहाँ पे किसी भी चीज का रिपीटेशन नहीं हो रहा है. There is no duplicacy of any of the department name, right? All department names are unique. इसके बाद आप अपना अमाउंट का कॉलम समेशन ऑफ वैल्यूज में ड्रॉप कर दीजिए. इससे क्या होगा, डिपार्टमेंट वाइज नेम का डिपार्टमेंट वाइज अमाउंट का टेबल बन जाएगा. नाउ यू आर हैविंग टेबल फॉर अमाउंट, ट्रांजैक्शन अमाउंट ऑफ क्रेडिट कार्ड फॉर ईच डिपार्टमेंट. सो लुक हियर, मैं देख सकता हूँ कि लेडीज डिपार्टमेंट में हाईएस्ट सेल हुआ है फ्रॉम द डेटा सेट, एंड सेकंड हाईएस्ट इट इज इन अप्लायंसेस डिपार्टमेंट, राइट? Second highest it is in appliances department. Now students, I would like to show you one important feature here. Suppose you are going to add something new. You are going to add a new data set in your sheet. मान लीजिए कि आप अपने डेटा में कुछ नया ऐड करने जा रहे हैं. जैसे at the end of this table I am going to add a new row. And it is not necessary that you are going to add at the end only. कहीं पे भी insert कर सकते हैं आप. मान लीजिए यहाँ पर मैं अपना एक नया ट्रांजेक्शन इंसर्ट करता हूँ. I repeat, चेक कीजिए. I have inserted 2 rows here. मैंने 2 नई rows यहाँ पे इंसर्ट किए, and I'm giving same date 20. I'm giving date 27-28 June. Transaction ID. Suppose this is the transaction ID. Same name I am copying here. Same चीज मैंने कॉपी किया है यहाँ पे. But amount I am giving like 10,000 in this transaction and 20,000 in this transaction. Right? तो आपने कुछ देखा, मैंने 2 नए डेटा सेट एंटर किए हैं यहाँ पर. ओके, इन दोनों डेटा सेट्स में, इन दोनों न्यू डेटा रोज के अंदर आप देख रहे हैं अमाउंट मैंने हाउसवेयर डिपार्टमेंट के लिए इंसर्ट किया, राइट? आइए जरा मैजिक देखते हैं. आफ्टर इंसर्टिंग अ न्यू डेटा इनटू टेबल, डेटा में आपने नया डेटा इंसर्ट कर दिया है, बट हियर द पाइवोट टेबल इज सेम एज द प्रीवियस डेटा. इट इज नॉट as per the new data. Just right click here and there's a button of refresh. I repeat, there's a button of refresh. आप देखिए जरा पाइवोट का फायदा. जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया, कुछ नजर आया आपको? इन हाउसवेयर डिपार्टमेंट अमाउंट हैज बीन चेंज्ड.
अब ये अमाउंट आ रहा है 32,149 जो कि पहले नहीं था। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने 30,000 की नई एंट्री यहाँ पे कर दी। तो कुछ समझ में आया? अगर आपने डेटा को, अगर आपने डेटा शीट को टेबल में कन्वर्ट किया हुआ है, so you can also amend your data set और पाइवोट ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा। You need not to follow the same process once again. Automatically you will be able to refresh your pivot table और नया pivot table बन जाएगा। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। Suppose in a cell I am going to change data for the men's department. This is 78,000. This is 78,000 and I am going to change it at 78 like this. यहाँ देखिए 7,80,000, 78 लिखा था यहाँ पर और मैंने इसको क्या कर दिया 7,80,000। आइए जरा देखें पाइवोट में भी चेंज हुआ है क्या? राइट नाउ no entries there in pivot, no change, but right click and refresh. Look here, men's department में अब नई एंट्री हो गई है and the new total is of 7,81,860. So this is the beauty of pivot. आप यहाँ पर कुछ भी नया ऐड कर सकते हैं एंड रिफ्रेश कर सकते हैं, उससे वो ऑटोमेटिकली पाइवोट के अंदर आ जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। So this is called dynamic pivot, right? Dynamic pivot. So if you are going to delete anything from the data, if you are going to add anything in the data, your pivot is going to change automatically. चलिए आप अगली बात समझते हैं। स्टूडेंट्स कुछ कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे पास जो डेटा है वो एक शीट में नहीं होता और मल्टीपल शीट्स में होता है, राइट? आर यू ऑब्जर्विंग माय पॉइंट? मैं क्या बोल रहा हूँ? इफ योर डेटा इज इन मल्टीपल शीट्स देन हाउ यू विल क्रिएट पाइवोट। अगर डेटा ही दो दो शीट्स में है तो फिर पाइवोट कैसे क्रिएट करें? अभी तक क्या हो रहा था, डेटा वाज इन अ सिंगल शीट, okay, and I was using the pivot. But if my data is in different sheets, two sheets, three sheets, then how I'm going to create a pivot? Friends, this is possible here. ये possible है यहाँ पर. Please observe your screen. In my this table, you know, some data is there, and you can observe the first column is order ID, second column is order date, shipping date, aging, shipping age, product category, product name, customer name, segment, city, right? But nothing is here which is numerical. आप देख रहे हैं इस डेटा शीट में कुछ भी ऐसा नहीं है जो न्यूमेरिकल हो। याद है आपको, कल हम इसी डेटा सेट पे काम कर रहे थे और हमने देखा था यहाँ पर और भी कुछ कॉलम्स थे, वो अब मैंने डिलीट कर दिए। नाउ ऑल दोस कॉलम्स आर इन अ डिफरेंट शीट। दिस देखिए, ऑर्डर आईडी इज देयर, my sales value, quantity, discount, profit, shipping cost, order priority, customer ID. These values are in a different sheet, and this textual information, this is in a different sheet. So now my point is, product category by sales तो कैसे करें? सेल्स तो है इस पाइवोट 2 शीट में और प्रोडक्ट कैटेगरी का नेम है पाइवोट 1 शीट में, तो ये कैसे पॉसिबल होगा? Students, this is possible in Excel using relationship. I repeat, in Excel there is an option of relationship. You can create a relationship between sheets. आप sheets में relationship create कर सकते हो. And for creating a relationship, there should be something common. कुछ common होना चाहिए. Otherwise, you know, you won't be able to create a relationship. आपको याद है हम human beings भी ऐसे ही relationship create करते हैं? कैसे? Are you from Rajasthan? Yes, I am also. Right? We belongs to same place, so we have some relationship, common thing. Similarly, I'm Saxena. This manner, same in the Excel also, you require something common, a common column in your sheet, right? Then only you can create. Then only you can create, you know, relationship. Okay.
Now just a second, there's a query in chat box. Let me answer this. So the data in the table, but why the name is showing pivot 1 pivot 2? Okay, uh, for my reference, I have given names to these sheets. Look here, मैं यहाँ से नेम दे सकता हूँ, रीनेम, और मैंने कहा दिस इज टेबल अंडरस्कोर 1, और इस टेबल को मैं बोल देता हूँ टेबल अंडरस्कोर 2. दिस इज लाइक रीनेमिंग अ फाइल. जैसे आप एक फाइल को रीनेम करते हो ना, वैसे ही हमने एक शीट को रीनेम कर रखा है. दैट्स इट, नथिंग एल्स, ये और कुछ नहीं है. और ये सिर्फ इसलिए ताकि मुझे याद रहे कि मेरा डेटा टू डिफरेंट शीट्स में. चलिए आगे चले. अब कैसे स्टार्ट करना है? सो द फर्स्ट रिक्वायरमेंट, कन्वर्ट योर डेटा इनटू टेबल. आगे जाने से पहले सबसे पहला काम है अपने डेटा को टेबल में कन्वर्ट करो. कैसे होगा? सेलेक्ट कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, राइट, क्लिक ऑन इंसर्ट एंड यूज टेबल कमांड. ओके, इससे होगा. सिमिलरली टेबल 2, सेलेक्ट योर डेटा एंड है, इसलिए ये मुझे बोल रहा है कि आप नहीं कर सकते. यू हैव ऑलरेडी कन्वर्टेड दिस, आपने ऑलरेडी किया हुआ है, राइट. Okay. Some of the students are asking for the files for practice. Okay, no issue. Let's do one thing. I think you have provided email IDs to us. Okay, so today we will send you some data files for you, or this data file, right? जिस पर मैं अभी काम कर रहा हूँ, we'll forward this data file to you. Don't worry. आज हम आपको provide कर देंगे. Yes. So let's come back. So step number 1, convert your data into table, right? This is step number 1. Now step number 2, click on data menu. Data menu पर आइए और देखिए जरा, यहाँ पर कुछ रिलेशनशिप जैसा आपको मिलेगा. Are you observing? There is a command for relationship, right? So click on this relationship to create relationship in Excel. इस पर क्लिक कीजिए, एक बॉक्स आपके सामने आएगा. My Excel is little bit slow, so that's why I'm not getting the box right now. I'm waiting for it. Yes. So this is the box. Manage relationship. There is a button, create a relationship. So click on this new. Now look here. Here you have two things. अब ये जो नया बॉक्स आया है, इसमें दो नई चीजें हैं. One is you need to highlight which is your primary table, and then you need to highlight which is your secondary table, foreign table, primary table or foreign table. So first of all, click on second drop down and select a table name. So my first table is the primary table, and there's a column order ID, which is a common column. आपने देखा मेरी दोनों शीट्स में ऑर्डर आईडी का जो कॉलम है वो कॉमन है, सेम है दोनों के अंदर. सो दिस इज माय कनेक्शन. ये मेरा कॉमन पॉइंट है जिसके बेसिस पे मैं रिलेशनशिप बनाऊंगा. सो टेबल 1 ऑर्डर आईडी. नाउ सेलेक्ट टेबल 2 एंड ऑटोमेटिकली इट इज कंसीडरिंग ऑर्डर आईडी. इसको पता है कि जो आपने इधर लिखा है वही आप इधर लेने वाले हैं. सो ऑर्डर आईडी, राइट. एंड नाउ प्रेस ओके. देखा आपने, वो जो कॉमन था उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है. सो in this manage relationship, now there is a information that you have connected two sheets. You have connected table 1 and table 2. So there is a relationship which is based on order ID, right? इतना करने के बाद उसको क्लोज करना है. समझ में आया आप सबको? इतना करने के बाद आपको इसे क्लोज करना है, right? Now what next? Now students, click on any sheet, table 1 or table 2, in any cell, right? And then create a pivot, insert or pivot. ठीक है. अब क्या करें? अभी यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है? There is only table 2, but table 1 is not there. तो अब क्या किया जाए? Look here, there is another option. Use this workbook as data model. आप देख रहे हैं यहाँ पे
देयर इज अ बटन जो बोल रहा है कि आप इस वर्कबुक की सारी शीट्स को डेटा मॉडल की तरह यूज कीजिए। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ओके, यूज दिस बटन, इस पर क्लिक करना है आपको, क्योंकि हमने रिलेशनशिप क्रिएट की हुई है, इसलिए क्लिक यहाँ पे कीजिए, यूज दिस वर्कबुक्स डेटा टेबल, एंड आफ्टर दैट my active sheet. But the beauty of this sheet is here you are getting list of sheets. Earlier you were getting list of variables, list of fields, but now you are getting list of tables here. So, अगर आपको कुछ टेबल 1 से लेना है, pick that. If you want to pick something from table 2, you can. Okay, so this is the beauty of the relationship. अब देखिए जरा, मैं टेबल 1 पे क्लिक करता हूँ, टेबल 1 पे डबल क्लिक किया और यहाँ से मैं यूज करने वाला हूँ a variable that is region name. So I have selected the region Africa, Canada, Caribbean, Central, East, North. So this is the list of region, right? Now at the end of the sheet there's a table 2. Click on table 2, right? And from table 2 select a variable sales. Just a second. From table 2 select a variable sales. Output is ready. देखा आपने, इस पाइवोट का फर्स्ट कॉलम ये एक अलग शीट से आया है और सेकंड कॉलम ये एक अलग शीट से आया है। देयर वाज अ कॉमन पॉइंट जिससे हमने उन दोनों को कनेक्ट कर लिया था, और नाउ आई एम एबल टू क्रिएट अ पाइवोट फ्रॉम मल्टीपल शीट्स। अदरवाइज आपको डेटा कंपाइल करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप काम कर सकते हैं। बट हियर यू डोंट रिक्वायर कंपाइलेशन ऑफ द डेटा, आपको कंपाइल करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस फीचर। ओके, इज दैट इंटरेस्टिंग? काम का है क्या ये स्टूडेंट्स? इज दैट यूजफुल? Okay, good. So students, in this manner you can create relationship and then you can create a pipe, right? So students, as you observed here, I was talking to you about uh, कंसोलिडेशन। मैंने अभी भी आपको बताया कि अगर ये फीचर आपको नहीं पता हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंसोलिडेट करना पड़ेगा चीजों को, राइट? डेटा को कंसोलिडेट करना पड़ेगा फ्रॉम मल्टीपल शीट टू वन शीट। तो आइए जरा अब यही सीखते हैं कि कंसोलिडेशन कैसे होता है। क्या हम एक्सेल में डेटा को कंसोलिडेट कर सकते हैं? डू वी हैव एनी फीचर फॉर कंसोलिडेशन ऑफ द डेटा? सो द आंसर इज यस, देयर इज अ फीचर। So now I'm going to use a sheet, a new sheet. Look here, and here I'm going to consolidate for you. So look here, I'm going to take a common data set. Please observe my screen. There is a sheet January. मेरे पास एक डेटा है जो January month का है. Now I have another sheet in my file, and I have another data set which is of February. Then another data set, it is of March. Sorry. It is of March. It is a different sheet, right? Now what I want, students, I want to get total of these three sheets. मुझे consolidate करना है इन तीनों sheets को। आपने देखा जनवरी का डेटा है, फेब का डेटा है, मार्च का डेटा, और मुझे क्या चाहिए? I want to get total. I want to get summation of data from all three sheets. तो आप में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सेकंड शीट में जाके डेटा को कॉपी करेंगे, फर्स्ट शीट में पेस्ट करेंगे, फिर थर्ड शीट में जाएंगे, कॉपी करेंगे, फर्स्ट शीट में पेस्ट करेंगे। ये सब करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। here in a fresh sheet, if you want to get output, in a fresh sheet if you want to get output, so you just need to follow my instruction। देखिए क्या करना है, एक फ्रेश शीट बनाइए। मैंने यहाँ पे एक शीट बनाई है 3D sum, दिस इज द नेम ऑफ माय शीट।
और इसमें मैं क्या करना चाहता हूँ, आई वांट टू गेट तो डेटा ऑफ, आई वांट टू गेट टोटल ऑफ जैन फैब मार्च फ्रॉम शीट नंबर जैन, फ्रॉम शीट जैन फैब मार्च। ओके, तो ये कैसे किया जाएगा? दिस इज वेरी इजी, राइट? जस्ट क्लिक इज इक्वल टू एंड टाइप सम। आपको सिर्फ इज इक्वल टू टाइप करना है, सम टाइप करना है और डबल क्लिक कीजिए इस पर। इसके बाद क्या करना है, क्लिक ऑन शीट जनवरी एंड सेलेक्ट द फर्स्ट सेल। जनवरी को क्लिक करना है और फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करना है, राइट? इसके बाद प्रेस कंट्रोल की, प्रेस कंट्रोल की फ्रॉम योर कीबोर्ड, सेलेक्ट फैब, sorry, you need to select, you need to press shift key, not the control key, shift key. So press shift key, click fab, click mark, right? तो अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे क्या होगा, एक्सेल को ये समझ में आ गया कि सम करना है जनवरी से लेकर मार्च तक की शीट में से, और वो भी किस कॉलम, किस सेल का, B2 सेल का। So Excel is going to pick B2 cell of Jan month plus B2 cell of Fab month plus B2 cell of March month, और ये मुझे इसका टोटल दे देगा in a new sheet that is 3D sum, right? So now I am going to press bracket close and enter. Look here, देखा आपने, शीट शीट 1 के डेटा, शीट 2 के डेटा और शीट 3 के डेटा से ऑटोमेटिकली यहाँ पे टोटल आ गया। और अब से कुछ नहीं करना आपको, इसको ड्रैग कीजिए राइट हैंड साइड में, ये देखिए अदर कॉलम्स का भी टोटल आ गया एंड ड्रैग इट टू डाउन साइड एज वेल। द टेबल इज रेडी फॉर यू। देखा आप सबने, दिस इज द समेशन। इन द सेम मैनर यू कैन डू एनीथिंग एल्स, आप कोई भी अलग फॉर्मूला लगा सकते हैं इन द सेम मैनर, बट द ओनली रिक्वायरमेंट इज your data should be in same cell at same location. Look here, this data is of same dimension, 5 column 10 rows, and it was in the, it was in the initial cells A12 A12 and F11। इसका इसका स्कोप क्या है, A1 to F11 फैब में आइए। दिस इज आल्सो फ्रॉम A1 to F11। नेक्स्ट पर आइए, दिस इज आल्सो इन A1 to F11। तो इस 3D सम के फॉर्मूले की ये लिमिटेशन है, आपका डेटा सेम लोकेशन पर होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इट शुड बी सेम साइज। ओके, नंबर 3, जहां पर भी आप डेटा चाह रहे हो, आउटपुट चाह रहे हैं, देयर यू नीड टू प्रिपेयर फॉर्मेट बाय योर ओन। देखा आपने, ये फॉर्मेट मैंने खुद ने बनाया था, ये मैंने टाइप किया हुआ था ऑलरेडी पहले से। तो एक्सेल ने मुझे क्या दिया, ये टोटल दिया, बट दिस फॉर्मेट वाज ऑलरेडी देयर, ये मैंने बनाया था पहले से, राइट? So this is a limitation of this particular command of consolidation, right? Students, now the problem is, suppose you shift data from sheet 1, आपने डेटा को शिफ्ट कर दिया अपनी जगह से, दूसरी शीट में से भी आपने शिफ्ट कर दिया कहीं पर भी, और थर्ड शीट में से भी आपने शिफ्ट कर दिया कहीं पर भी। अब जरा देखिए, आर यू गेटिंग आंसर? नो, you are not getting your answer. The answer is not there. अब आंसर 0 0 0 आ रहा है क्योंकि कुछ है ही नहीं वहां पर जहां ये फॉर्मूला लगा हुआ है। So do we have anything by which we can get consolidation of sheets in which data is at different locations? क्या हमारे पास कुछ ऐसा है इस एक्सेल में जिससे हम डेटा कंपाइल कर सके जिसमें जो कि अलग अलग जगह पे लिखा हुआ है? So the answer is yes, right? ऐसा हो सकता है। How? First of all, create a fresh sheet. एक फ्रेश शीट बनाइए, ओके, और मैं इस शीट का नाम दे रहा हूँ टोटल, ठीक है? इस फ्रेश शीट में अपना कर्सर कहीं पर भी रखिए जहां पर आप आंसर चाहते हैं। So my cursor is in this cell B3. Okay, now click on data, and in data there is a facility called consolidate. Observing? Students, are you observing this? Consolidate. So use this feature, consolidate. देखिए इससे क्या होता है, मैं दिखाता हूँ आपको। क्लिक ऑन कंसोलिडेट। ये पूछ रहा है आपसे क्या चाहिए, आप
You want sum, you want count, you want average, maximum, minimum, product, standard deviation, variance, जो कुछ भी चाहिए select from this sheet, this list. तो मैंने कहा मुझे तो सिर्फ एवरेज दे दो अभी, सॉरी टोटल सम. नाउ sum of what, किसका? So in the reference, click on this red mark, go into sheet number 1, January, select your data, जहां पर भी है शीट में सेलेक्ट कीजिए and press add. Is that clear? Once again मैं repeat करता हूँ. Click on this red sign, click on fab, select your data and click on add. Right? एक और बार करते हैं. मार्च की शीट में जाइए, select your data जो कि कहीं पर भी होगा आपकी शीट में and press on add. देखा आपने? I have added data which was in different sheets. Okay. Now you need to specify something. Use labels in top row. मैंने कहा कि रो की हेडिंग अपने आप बनाओ. Use labels from left column. रोज की हेडिंग भी अपने आप बनाओ. कॉलम की हेडिंग भी अपने आप, रोज की हेडिंग भी अपने आप. And also create a link to the source. क्या फायदा होगा इससे भी देखते हैं. प्रेस हो. देखिए जरा. कुछ देख रहे हैं आप लोग? The table is ready. You have total. आपके पास टोटल अपने आप आ गया है और फॉर्मेट भी इसने अपने आप बनाया. Look here. I have not written these names. I have not written these labels. These labels are by default there. ये अपने आप है यहाँ पे. Okay. And total has been presented here from 3 different sheets. Right? Now suppose you are going to change a data in sheet 1. जनवरी मंथ में आपने कुछ चेंज किया, जैसे इस 50 को कर दिया 50,000. तो आइए देखिए क्या इससे रिजल्ट चेंज होता है. कुछ चेक किया आपने? कोई रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है. ऑटोमेटिकली यू आर गेटिंग न्यू आउटपुट. डेटा चेंज करने के बावजूद आपका आउटपुट चेंज हो गया ऑटोमेटिकली. once again let me tell you, in fab sheet suppose I am going to change data 84,000, 90,000, 12,000, 57,000 and 12,000. राइट? इतना सारा डेटा मैंने चेंज कर दिया शीट 2 में. क्या मेरा टोटल चेंज हो जाएगा? ये देखिए. हाँ जी, हो गया. राइट? you have new table, new total now. This is the beauty of consolidate command. अच्छा, एक और चीज दिखाऊं मैं आपको. जरा लेफ्ट साइड पे देखिए. there is a plus sign. there is a plus sign in the left hand side. ये प्लस का क्या करना है फ्रेंड्स? if you will click on this plus, तो ये आपको ये भी बताएगा ये जो टोटल आया था ना 50,060, ये कैसे आया था. जिसने कहा शीट 1 में 10 लिखा था, शीट 2 में 50,000 लिखा था, शीट 3 में 50 लिखा था. हमने इनका टोटल कर दिया और आंसर आ गया. यानी ये आपको कैलकुलेशंस भी बता रहा है. लुक हियर. 11 11 11 33 14 14 14 42. तो अगर आप इस प्लस साइन पे क्लिक करते हैं सो यू विल बी गेटिंग आइडिया अबाउट द प्रोसेस. क्या प्रोसेस हुआ था कि ये आंसर 84,000 आया. क्लिक ऑन प्लस. द आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू. ये बता रहा है कि पहली शीट में 84,000 था, सेकंड में 84 था, थर्ड में 84 था, तो टोटल हुआ 84,168. Is that clear to you? So friends, in this manner you can utilize consolidate command, okay, to get a total of something, some data which is in different sheets. तो ऐसा कई बार होता है. अगर आप बैंक में काम कर रहे हैं तो आप you must be getting some MIS of branch wise MIS, employee wise MIS, okay, zone wise MIS, और you want to consolidate. आप इसको टोटल करके रिपोर्ट देना चाह रहे हो. So in a single click you can get total, but the only limitation is your format should be common. आपका format same होना चाहिए, common होना चाहिए. Right? Your structure should not be different. Okay. Friends, now I am going to tell you, suppose you don't want to get total, you just want to compile data. You have multiple sheets, आपने data कहीं से collect किया है and which is in multiple sheets but in same format. तो क्या करें हम कि वो सारा data compile होके एक जगह आ जाए. I repeat,
आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन, आई एम जस्ट लुकिंग फॉर कंपाइलेशन ऑफ द डेटा। तो अब हम सीखते हैं कि डेटा को कंपाइल कैसे किया जाए। इसको बोलते हैं अपेंड टेबल, राइट। टेक्निकल नेम ऑफ दिस कमांड इज अपेंड, APPEND, अपेंड टेबल, राइट। और ये मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। My mistake, I have clicked somewhere. हाँ, so look here, friends. In this particular data set, append table, I have a sheet January. मेरे पास यहाँ कुछ डेटा है जनवरी मंथ का, फिर कुछ डेटा है फैब का, फिर कुछ डेटा है मार्च का, फिर डेटा है अप्रैल का, मई का, जून का। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये सारा डेटा कंपाइल हो जाए एक जगह पर। आई वांट टू गेट कंपाइल्ड आंसर, ओके, एट वन प्लेस लाइक दिस। देख रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ डेटा ऑफ टेबल 1, उसके बाद देयर इज अ डेटा ऑफ टेबल 2, then there is a data of table 3. This is called compilation of the data from multiple sheet, one by one, एक के नीचे एक लिखा हुआ आ जाए, तो इसको हम बोलते हैं append table. And students, in Excel there is a very powerful tool called query, Excel query, power query. ये जो query tool है ना, ये आपके बहुत सारे काम बहुत आसानी से कर सकता है। यानी जिस काम में आप 10 मिनट लोगे, ये उसको 1 सेकेंड में कर सकता है, पावर क्वेरी। तो जब भी आपको टाइम मिले, एक्सेल में पावर क्वेरी को जरूर सीखना है सबको। ओके, सो आई एम गोइंग टू कवर सम ऑफ द पार्ट, राइट, व्हिच आई कैन कवर इन दिस टाइम फ्रेम ऑफ 1 आवर। तो मैं आपको अब सिखाने जा रहा हूँ कि कंपाइलेशन कैसे होता है एक्सेल की शीट से डेटा का यूजिंग पावर क्वेरी। So students, you must note down this command in your copy, is equal to excel dot current workbook bracket. ये कमांड आपको याद रखना है। ओके, यू नीड टू टाइप दिस कमांड whenever is needed. जब मैं आपको बताऊं तब आपको ये टाइप करना पड़ेगा। एक और चीज आपको याद रखना है, इन दिस कमांड स्टूडेंट्स, E is capital, C is capital and W is capital. इट्स अ केस सेंसिटिव कमांड। अगर आपने इसको स्मॉल लेटर्स में टाइप किया, आई एम सॉरी, यू विल नॉट रिसीव योर आंसर, आपको अपना रिजल्ट नहीं मिलेगा। ओके, तो आप इस कमांड को बिल्कुल ऐसे ही लिखना है जैसा मैंने आपको बताया, एक्सेल डॉट करंट वर्कबुक एंड ब्रैकेट। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स डिलीट द आउटपुट। पहले इसको डिलीट कर दें क्योंकि अब हम नया आउटपुट चाह रहे हैं। अब क्या करना है? the rule number 1, rule number 1 is convert your all the tables, convert your all the data sheets into table. आपका जो भी डेटा शीट है उसको टेबल में कन्वर्ट कर दीजिए। कैसे? सेलेक्ट कीजिए एंड प्रेस कंट्रोल टी, बन जाएगा टेबल में। सेकंड पर आइए और कंट्रोल टी, सबको टेबल में कन्वर्ट कर दीजिए। दिस इज द रूल नंबर 1. So if you have 100 sheets, if you have 100 tables in a workbook, no issue, you can compile. सिर्फ वो टेबल में होनी चाहिए। आगे चलते हैं, क्या करना है। नाउ यू नीड टू क्लिक ऑन डेटा टैब। डेटा टैब पर आना है और डेटा टैब पर यहाँ एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जिस पर हम बहुत कम ध्यान देते हैं। इट्स अ क्वेरी कमांड, गेट एंड ट्रांसफॉर्म फीचर ऑफ द डेटा। सो देयर इज अ क्वेरी कमांड, okay, and the query, if you have some query from table, you can borrow from here, or if you want to create a new query, click on here, right. अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, I am going to click on new query because the function is not available in Excel by default. मुझे इसे create करना पड़ेगा। So click on new query and then click on from other source, and सबसे लास्ट आता है blank queries के अंदर। नोट इट डाउन, नोट दिस प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन डेटा टैब, आपको डेटा टैब पर जाना है। डेटा टैब पर जाने के बाद न्यू क्वेरी पर क्लिक करना है, देन क्लिक ऑन फ्रॉम अदर सोर्सेज, देन क्लिक ऑन ब्लैंक क्वेरी। ओके, इस ब्लैंक क्वेरी पर क्लिक करने के बाद एक नया शीट ओपन होगा। इट्स अ क्वेरी कमांड। So let me introduce this query command first, this query window first.
इस क्वेरी कमांड में क्या है, बहुत सारे इनबिल्ट फीचर्स हैं जो एक्सेल में नहीं है, राइट। सो इन दिस क्वेरी कमांड, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कमांड लिखवाया था, इज इक्वल टू एक्सेल डॉट करंट वर्कबुक, दैट यू नीड टू टाइप हियर, वो आपको यहाँ फॉर्मूला बार पे टाइप करना है, ओके। और आप जो भी करने वाले हैं, जो भी स्टेप्स करेंगे, वो यहाँ रिकॉर्ड करेगा क्वेरी, ठीक है। आप जो भी स्टेप परफॉर्म करेंगे उसको ये यहाँ पे शो करेगा, यू हैव परफॉर्म दिस थिंग, राइट। चलिए टाइप करके देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको याद होगा कि आपको क्या करना है ऑन योर एक्सेल। मैं इसको एक बार क्लोज कर रहा हूँ, डिस्कार्ड, yes. So now click on data, new query, from other source, blank query, yes. So type this command, which is actually on your screen, जो आपकी screen पे दिख रहा है, in formula bar, okay. So in formula bar I am typing is equal to capital E XCL Excel dot capital C current capital W workbook and bracket close, okay, is equal to excel dot current workbook bracket close। देखा आप सबने, मैंने एज इट इज कमांड टाइप किया एंड आफ्टर दिस प्रेस एंटर। तो देखिए क्या किया इसने, जैसे ही आपने एंटर प्रेस किया, इसने मुझे बताया कि आपकी फाइल में टोटल 6 शीट्स हैं, टोटल 6 शीट्स हैं। पहला है टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, टोटल 6 टेबल्स हैं, सॉरी, इन योर फाइल देयर आर 6 टेबल्स इन टोटल। मैंने कहा ओके, दैट्स ग्रेट, यस, हाँ 6 है। अब आपको इस एरो पर क्लिक करना है, देख रहे हैं ये 2 डायरेक्शनल एरो जो दिख रहा है, तो क्लिक ऑन दिस 2 डायरेक्शनल एरो। इस पर क्लिक करते ही ये बोलेगा इन ईच शीट, इन एवरी शीट, यू नो देयर आर मार्क्स। क्या क्या है उसमें, देयर इज अ कॉलम 1, देयर इज अ टेस्ट 1, देयर इज अ टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, टेस्ट 5। तो जो कुछ भी चाहिए आपको वो यहाँ से ले लीजिए। सपोज आई वांट टू कंपाइल ओनली टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 मार्क्स, नॉट द टेस्ट 4 एंड 5, नो, बस इसको ही ले लीजिए, ओके प्रेस कीजिए। और ये देखिए, देखा आपने, नाउ इन दिस टेबल यू आर गेटिंग टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 marks for table 1, table 2 and same as table 3, 4, 5, 6। नोट कर रहे हैं कुछ आप, सारी टेबल से डेटा ऑटोमेटिकली इसने कंपाइल कर दिया है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो आपने अभी अभी प्रोसेस अप्लाई किया वो यहाँ रिकॉर्ड हो गया है। तो अगर आपको वापस पीछे जाना है, अंडू करना है अगर, तो इस क्रॉस बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। सपोज मुझसे कोई मिस्टेक हो गया है, मुझसे मिस्टेक हुआ है, एंड यू नो व्हाट इज द मिस्टेक, ये हर एक कॉलम के आगे कंटेंट 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 लिखा हुआ आ रहा है, आई डोंट वांट दिस कंटेंट, सो जस्ट गो बैक, क्लिक ऑन दिस क्रॉस, तो ये वापस पीछे पहुंचा देगा मुझे इन द प्रीवियस स्टेज। नाउ वंस अगेन क्लिक ऑन दिस कंटेंट एंड सबसे लास्ट में एक चेकबॉक्स है, इस चेकबॉक्स को आपको अनचेक करना है। देखिए क्या बोल रहा है, यूज ओरिजिनल कॉलम नेम एज प्रीफिक्स। ये कह रहा है कि जो यहाँ लिखा हुआ है, क्या मैं उसको हर एक नेम के आगे डाल दूं, प्रीफिक्स यानी पहले डाल दूं। तो आंसर हमको बोला नो, नहीं करना है ऐसा, तो अनचेक इट एंड नाउ प्रेस ओके। चलो खैर, देखा आपने, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, टेस्ट 5, इट इज रिलीज, वो कंटेंट गया और ये यहाँ पे कंपाइल हो गया, राइट। अच्छा, अब इसको एक्सेल में कैसे लेके जाएंगे, तो पावर क्वेरी है, दिस इज पावर क्वेरी, दिस इज नॉट एक्सेल, राइट। सो हियर वी हैव अ बटन क्लोज एंड लोड, क्लोज एंड लोड। तो ये क्या करेगा, आपके आउटपुट को आपकी एक्सेल में लोड कर देगा इन द सेम फाइल, क्लोज एंड लोड। और जरा देखिए क्या हो रहा है, जैसे ही मैंने क्लोज एंड लोड किया, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून के बाद एक नया शीट यहाँ अपने आप आ गया,
और सारा का सारा डेटा कंपाइल होके मेरी स्क्रीन पर आ गया अपने आप। टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, जितनी भी टेबल्स थी सबका डेटा वन बाय वन नीचे आ गया। आर यू गेटिंग इट? समझ में आ रहा है सबको? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एंड हियर इन राइट हैंड साइड यू आर आल्सो गेटिंग दैट क्वेरी। ओके, एक और चीज आपको करनी है यहाँ पे, क्लिक ऑन दिस क्वेरी, डबल क्लिक ऑन क्वेरी once again. Okay, and in this name, in this last column of name, do one thing, kindly uncheck this query 2, uncheck this query 2. आपको you know ये क्या था? एक्सेल ने क्या किया, आपकी सारी शीट्स से डेटा कंपाइल किया और एक आउटपुट बनाया और आउटपुट को फिर से कंपाइल कर दिया, जबकि हमें क्या चाहिए, वी आर ओनली लुकिंग फॉर आउटपुट। हमको कंपाइल नहीं करना है, सिर्फ 6 शीट्स को कंपाइल करना है, आउटपुट और 6 शीट्स को कंपाइल नहीं करना है, राइट? सो दैट्स व्हाई आई नीड टू अनचेक दिस क्वेरी। और अब जब मैं ओके प्रेस करूंगा और सिर्फ क्लोज एंड लोड करूंगा तो अब मुझे राइट आंसर मिलेगा। सो नाउ वी हैव ओनली 60 रोज, अर्लियर देयर वर 120 रोज वर देयर। तो 60 एक्स्ट्रा रोज किसकी आ गई थी? आउटपुट की आ गई, राइट? तो उसने आउटपुट को भी कंपाइल कर दिया था, right? But I don't want output, I just need this. This is my answer. So friends, in this manner, you know, you can compile data from multiple tables into a single table automatically. चाहे ये 100 tables हो, चाहे ये 500 tables हो, जितनी भी tables आपके पास है, आप उसको इसी तरह से compile कर सकते हो using data query command. Now students, to end the session, let me show you the last topic of today, that is of hardly a minute, सिर्फ 1 मिनट का एक टॉपिक है, but that is very very useful और मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ। Yes, this is a flash fill feature of the Excel. You will like it, I can assure you. हमारे एक्सेल में एक फ्लैश फिल नाम का और फीचर होता है जो आपकी आधे से ज्यादा काम को खुद कर सकता है। देखिए जरा ध्यान से आपकी स्क्रीन पर। स्टूडेंट्स, here we have something here in this column. मेरे पास यहाँ कुछ डेटा लिखा हुआ है और इट्स कोड ऑफ अ प्रोडक्ट। ये एक प्रोडक्ट का एक कोड है और इसमें क्या दिख रहा है मुझे स्पेशली, इन दिस कोड इनिशियली अ नंबर इज रिटन देयर 1001, then there is a middle number of 3 digits, then there is a alphabetic B, and then there is another number. Okay, so if you have something like this, if you want to extract only middle number from this, अगर आपको ये चाहिए कि इसमें से जो मिडिल नंबर है वो निकल के आ जाए, राइट? मिडिल नंबर बोले तो 178 अपने आप, राइट? तो ये कैसे होगा? तो एक्सेल में इसको बोलते हैं फ्लैश फिल। एक्सेल में एक फीचर है फ्लैश फिल जो क्या करता है, आपकी अप्लाई की हुई सेटिंग्स को, पैटर्न्स को रीड करता है और वैसा ही आउटपुट आपको देता है। एंड दिस फ्लैश फिल फीचर इज आल्सो अवेलेबल इन डेटा टैब। ये भी डेटा टैब में ही अवेलेबल होता है। फ्लैश फिल देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ, इन डेटा टैब देयर इज अ फ्लैश फिल and we have a shortcut for this, that is control plus E. if you will press control plus E, ये काम करना स्टार्ट कर देगा। ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया, फर्स्ट प्रोडक्ट कोड के आगे 178 लिख दिया इन अ न्यू सेल, और अब मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल प्लस ई, तो किया द मैजिक। देखा आपने, सेम आंसर इट हैज गिवन टू मी फॉर ऑल माय एंट्रीज। लेट मी ट्राई वंस अगेन। सपोज कीजिए मुझे सिर्फ फर्स्ट वाला नंबर निकालना, नॉट द ऑल नंबर्स, प्लस ई। देखा आपने, ये फर्स्ट नंबर आ गया अपने आप। सपोज मुझे लास्ट वाला नंबर एक्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम दिस, कंट्रोल प्लस ई। आ रही है बात समझ में आपको? एक और चीज आपको दिखाता हूँ। सपोज यू वांट टू एक्सट्रैक्ट
ओनली लास्ट 101। आपने देखा, मैंने बी को भी हटा दिया, प्लस मैं एक और चीज करने वाला हूँ यहाँ पे। क्या? आई एम गोइंग टू राइट माई नेम एट लास्ट 101 अंडरस्कोर अभिनीत। देखा आपने? और मैं इसको बोल्ड भी कर देता हूँ, इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, इसका फोन साइज बढ़ाने वाला हूँ, काफी सारी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देता हूँ। फोन फोन टाइप भी चेंज कर रहा हूँ। आप जरा मैजिक देखिएगा। आपने देखा, मैंने जो कुछ भी करना था मैंने एक फर्स्ट सेल में कर दिया। नाउ एक्सेल इज गोइंग टू रीड द पैटर्न, प्रेस कंट्रोल प्लस ई। कुछ देखा आप लोगों ने? फ्लैश फिल का पावर। फ्लैश फिल ने ऑटोमेटिकली यहाँ से लास्ट नंबर को एक्सट्रैक्ट किया, यहाँ पे रिपोर्ट किया, अंडरस्कोर लगाया, अभिनीत लिखा, और जो मेरा फॉर्मेटिंग था उसको भी अप्लाई कर दिया। राइट? सो अदर देन बैकग्राउंड फॉर्मेटिंग, ऑल अदर थिंग्स आई एम गेटिंग हियर। इसके क्या फायदे हैं देखिए जरा। जैसे यहाँ देखिए, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे लिखा हुआ है, और मुझे इसमें से सिर्फ SUN चाहिए, वो भी कैपिटल लेटर्स में। प्रेस कंट्रोल ई, ये देखिए आ गया। सपोज कीजिए यहाँ पर मुझे लास्ट 2 अल्फाबेट चाहिए AY, और यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल V प्रेस करता हूँ, कंट्रोल E, तो आई एम नॉट गेटिंग आंसर। यहाँ मुझे आंसर नहीं मिल रहा है। यू नो व्हाई आई एम नॉट गेटिंग आंसर? बिकॉज द साइज ऑफ एवरी वर्ड इज डिफरेंट। कोई बात नहीं, इसे समझाइए, इसे बोलिए AY, एक बार फिर से AY लिख दीजिए अगले सेल में। अब ये समझ गया है कि आपको क्या ढूंढना है। AY ढूंढ रहे हैं आपसे, लास्ट 2 डिजिट्स, कंट्रोल प्लस E। अगेन आई एम नॉट गेटिंग आंसर, इट इज स्टिल कंफ्यूज, क्योंकि ये अभी भी पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है। नो इशू, एक बार और AY लिखिए, अब ये जरूर करेगा। कंट्रोल प्लस, देखा आप लोगों ने? सो टाइप 2-3 पैटर्न्स इन दी सेल्स and it is going to fill entire data set, entire row, entire column which is required to you. Okay, so let's finish this. एक लास्ट कमांड इसी को एक बार फिर से अप्लाई कर रहा हूँ, देखिए जरा। in my this table, first name of names, it is written in a different cell, last name is written in a different cell. I want to combine both the things in a cell. तो क्या करना है? सिंपली लिखिए अंजलि स्पेस WOODS सरनेम वुड्स, अंजलि वुड्स। मैं बता दिया इसको क्या करना है। प्रेस कंट्रोल, लुक हियर, इसने कंपाइल भी कर दिया। दो अलग अलग कॉलम से डेटा को कंबाइन भी कर सकता है कंट्रोल प्लस से, इवन 3 डिफरेंट कॉलम से भी कंबाइन कर सकता है। दिस इज द पावर ऑफ फ्लैश। इवन अगर आपने यहाँ पे वुड को कैपिटल में लिखा होता WOODS, और आपने इसके आगे लिखा होता अंडरस्कोर कुछ भी नया इंडिया, तो ये इसको भी रिकॉग्नाइज करता और एज इट इज बना देता सब। ये देखिए, देखा आप लोगों ने? सो फ्रेंड्स, this was the feature flash fill. Okay, so I hope we have covered new things for you. हमने कुछ नई चीजें आपको आज यहाँ सिखाई है। Do practice of this, right? And I can assure you, in this manner, you will be able to, solve your complex problems. You will be able to save your time in Excel, right? Okay, so see you tomorrow. Thank you. If you have any query, then I am available here. You can write in chat box. If you have any query, you can type in chat box. I am waiting for you, students. Write your query in chat box if you have any. Okay, thank you. See you tomorrow. Can we share Gmail ID for getting data sets? Yes, why not, Siddharth? You can. Okay, so Dinesh ji, I request you to kindly collect email ID of Siddharth as well. Siddharth, have you registered for this workshop? There was a line, there was a link, right? We have shared with everyone. So you need to fill your form, and if you have provided your email ID, then we'll send you the data set to you.